Good morning, class 12. In accountancy class, today's our topic is for feature in case of oversubscription and pro rata allotment. Oversubscription means when excess application is received, then adjustment of allotment will be known as the pro rata allotment. Then in the case of when excess application is to be received and excess application is to be adjusted towards the allotment, then after that the share are forfeited. So this is our topic. Let us start this topic with example number 55. In the example number 55, the statement is a company offered 1 lakh share of 10 each, 3 on application, 2.50 on allotment, 2.50 on first call, 2 on final call. The installment is 3 on application, 2.50 on allotment, 2.50 on first call and 2 rupees on second call. And company issued 1 lakh equity share, right? And public applied for 1,52,000 and company accepted 1,50,000, right? Public ने कंपनी ने इनवाइट किया 1 लाख शेयर, बट पब्लिक अप्लाई कर रही है 1,52,000 शेयर के लिए और कंपनी ने एक्सेप्ट किए 1,50,000. इट मीन्स 2,000 शेयर रिजेक्टेड हो गए और 50,000 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे. लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 अलॉटेड शेयर है, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दी उसने. एंड अलॉटमेंट एंड कॉल्स शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट and first call was made thereafter and share were issued 9 per share at 8 paid in and the final call yet not made by the company. First of all, company issued 1 lakh share and the application money is 3 rupees per application, but the application received 1,52,000. कंपनी ने इनवाइट किए 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन मिली 1,52,000 एंड कंपनी एडमिटेड 1,50,000. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एंट्री फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 1,52,000 एप्लीकेशन मिली, 3 rupees per share application. The amount received is 4,56,000. Entry is bank account debit to share application account. Application money received. After that, the entry for pro rata allotment is to be done. And the entry is share application account debit 4,56,000. अब हम जो कैपिटल में एडजस्ट करनी है कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे और जो शेयर हमने रिजेक्ट किए हैं उनकी मनी हम रिटर्न कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,56,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कंपनी ने इनवाइट किए थे 1 लाख शेयर, 3 rupees पर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपीज इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. नाउ द एक्सेस मनी, एप्लीकेशन मिली 1,52,000 जिसमें से 2,000 एप्लीकेशन आर टू बी रिजेक्टेड बाय द कंपनी एंड 1,50,000 एक्सेप्टेड. अब एक्सेप्ट करनी थी 1 लाख लेकिन कंपनी एक्सेप्ट कर रही है 1,50,000. इट मीन्स 50,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी एक्सेस है जो कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे. So 50,000 multiplied by 3, 1,50,000 is adjusted on allotment. 2 share allotment 1,50,000 and 2,000 share की 3 rupees per share के according 6,000 will be returned back. So the entry of pro rata is share application account debit 4,56,000, 2 share capital account 3 lakh, 2 share allotment 50,000 multiplied by 3 1,50,000 and 2 bank account 2,000 multiplied by 3 6,000 and the narration is adjustment entry will be done, right? After that, the company due the allotment on 1 lakh share and the allotment money is 2 rupees 50 paisa. So the entry for allotment due is share allotment account debit to share capital account 1 lakh multiplied by 2.50, 2,50,000 से हम allotment due करेंगे. Right now the allotment money is received, bank account debit to share allotment 99,800. कैसे आएगा बेटा? हमने allotment ड्यू की 2,50,000 से और 1,50,000 जो एक्सेस मनी था वो इसमें से माइनस कर दिया. अब हमें अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा? 1 लाख. लेकिन 200 शेयर पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ. 200 शेयर पे अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव एंड दिस 200 शेयर इज अलॉटेड. अलॉटेड शेयर दिए हैं तो हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे.
अलॉटेड शेयर दिए हुए तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे? इफ applied share 1,50,000, then allotted is 1 lakh, right? And if the allotted is 200, then 1 lakh upon 1,50,000 into 200, then the allotted applied share is 300, right? तो हम applied share निकाल लेंगे बेटे. अगर 1,50,000 upon 1 lakh into 100, 1,50,000 upon 1 lakh into 200, then the applied share is 200. मतलब वो शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर अलॉटेड है उसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 100 शेयर की एप्लीकेशन मनी 300 रुपीज उसकी एक्सेस पड़ी हुई है और उसे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया. तो जब हमने उसे अलॉटमेंट ड्यू की तो अलॉटमेंट कितनी बनती है उसकी? 200 मल्टीप्लाइड बाई 2.50, दैट इज 500 में से 300 तो उसका ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है, तो उसका 200 रुपीज इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर. देखिए बेटा फिर से देखिए, सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू की 2,50,000 से, एक्सेस मनी 1,50,000 इसमें से माइनस कर देंगे, नेट अमाउंट आ गया 1 लाख. 1 लाख में से 200 अलॉटेड शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं आई. अब इस शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर दिए हुए लेकिन इसने अप्लाई तो ज्यादा अमाउंट के लिए किया होगा, तो हमने इसके अप्लाइड शेयर निकाल लिए. अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालते हैं, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालते हैं. यहाँ पे अलॉटेड है तो अप्लाइड निकाल लेंगे. अप्लाइड कैसे निकालेंगे? अगर अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड शेयर ही ऊपर रखें. 1,50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 200, दैट इज 300. इसका मतलब उस शेयर होल्डर ने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था लेकिन कंपनी ने उसको 200 दिए थे, तो उसके 100 शेयर की एप्लीकेशन मनी एज इट इज पड़ी हुई है. तो जब हमने उसे 200 शेयर पर 2 रुपीज 50 पैसा के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट ड्यू की तो 500 बनता है, लेकिन 300 उसका एक्सेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है. देन द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज 200. So 1 lakh minus amount not received, 99,800 is to be received now on allotment, and the entry will be made bank account debit to share allotment account 99,800. Then allotment के बाद ही 200 शेयर पे जो अलॉटमेंट मनी नहीं आई थी, अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए. Then we have to make the entry for forfeiture, and the entry is share capital account debit. 200 share forfeit किए and the called up money is 3 rupees on application, 2 rupees 50 on allotment. So the called up money is 5 rupees 50 paisa, and the entry will be made share capital account debit 200 multiplied by 5.50, 1100. अब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट सिर्फ 200 नहीं आया था उसका, तो 2 शेयर अलॉटमेंट 200. Then 2 share forfeiture. Now this point is changed. पहले हम जो मनी पे कर देते थे वो यहाँ लिखते थे, अब हम अप्लाइड शेयर की एप्लीकेशन मनी यहाँ लिखेंगे. अप्लाइड तो उसके 300 शेयर थे, 300 मल्टीप्लाइड बाय 3, 900 एंटर्ड इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट. सो दिस इज द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर. और फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने फॉरफिट करने के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू की. टोटल कंपनी के इश्यूड शेयर 1 लाख थे, लेकिन उसमें से 200 फॉरफिट कर लिए. अब कंपनी 99,800 शेयर पर फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, एंड द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 99,800 मल्टीप्लाइड बाय 2.50, 2,49,500, and all the money is to be received on first call. Then the entry will be made bank account debit to share first call account 2,49,500. After that कंपनी ने ये जो 200 शेयर फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने ये जो 200 शेयर फॉरफिट किए थे, दिस शेयर आर टू बी रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹9. 8 पेड अप, 8 रुपए वाला शेयर कंपनी ने 9 रुपीज में इश्यू कर दिया. सो द एंट्री विल बी मेड for the reissue is bank account debit 200 multiplied by 9, 1800. अभी 8 रुपीज वाला शेयर 9 में रीइश्यू हुआ तो 1 रुपीज प्रीमियम है. देन 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 200 multiplied by 8, 1600. 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 200 multiplied by 1, 200. It means the share are reissued at 1 rupees premium, right? तो अब हम फॉरफीचर का अमाउंट, कोई लॉस नहीं है, प्रीमियम इश्यू हुए तो सारा फॉरफीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके लिए हम एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विद ₹900. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द example number 55 and the topic was
when the share are oversubscription, for feature of oversubscription and pro rata allotment. So now you are able to do your back exercise question up to question number 55. Thank you.